Everybody, we are to begin the chapter Our Environment. This is the first chapter of Standard 6 Science. Let's begin the chapter. We see a variety of plants and animals around. They may be similar or different depending upon the geographical and climate conditions. And here is one term, geographical and climatic condition. Geographical means the how the earth looks, the physical condition, physical environment, and how what kind of soil it has, whether it is mountain area or coastal area or plain area, polar region. This is about geographical condition. Whereas climatic condition, over the long period of time, what kind of weather is there, and then it is climatic condition. Like climate can be dry or polar region. You will get to know more about in geography, or while you will be studying social science. So climatic, basically when when longer period, what kind of weather a particular place is having in the longer period of time. Now living objects do not live in isolation. Isolation means अकेले रहना. Like in this COVID situation, कहते हैं ना कि isolate कर लेना, कुछ सारे लोगों को खुद को अलग कर लेना, आइसोलेट कर लेना, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना. सो लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, अकेले नहीं रह सकते. दे इंटरैक्ट मीन्स टू टॉक, मतलब आपस में बातचीत करना या आपस में कोई काम करना. देन इट इज़ इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद नॉन लिविंग surroundings in which they live. Non-living surroundings like air, water, temperature, soil, these are non-living surroundings. As a result, both plants and animals get adapted. Adapted means उस तरह से accustomed हो जाते हैं, उसके अनुसार ढल जाते हैं to their surroundings. Like जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, वहाँ के लोगों का lifestyle अलग होता है, क्योंकि वो वहाँ के लिए adapt हो जाते हैं. We find that there are two types of objects in our surroundings. Plants and animals, including human beings, form a living component. Right? Living component. All these are living components. They are also called biotic components, as water, soil, light, temperature, etc. are non-living and are also called abiotic components. These two things are very easy. Biotic means living and abiotic means non-living component. And बोथ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, दोनों को अगर एक साथ हम लोग लेते हैं तब हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बायोटिक एनवायरनमेंट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट. कौन कौन बनाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड different components one by one. Now see here, plants are producer. Why they are called producer? Because they produce food for everybody. They are called producer. Why? Because they are able to make their own food. They are not dependent like us on other things. Like we are dependent on plants for our food. We are dependent on animals for our daily needs and food as well. But plants make their own food. That's why they are called producer. वो खुद से अपना खाना बना लेते हैं. We all know that plants, like other organisms, need food. All living organisms require food in order to survive. That we all know right from standard 4, 5, 3. Green plants have the coloring matters called chlorophyll. The chlorophyll which is present in the leaves absorbs, this is important, absorbs. chlorophyll का क्या function है? It absorbs energy from the sunlight. उस एनर्जी को ही ये अपने खाना बनाने के काम में लाता है. एंड वी नो दैट लीफ इज़ अ प्लेस वेयर फूड आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्लांट. एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. रिमेंबर, when there is no green leaves, there won't be photosynthesis. So chlorophyll is essential for photosynthesis. This energy is used to prepare food. For this, all plants also use carbon dioxide from the atmosphere. Our atmosphere is a mixture of, it contains mixture of gases. तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आर मेनी अदर गैसेस. उसमें से प्लांट चूज़ करता है अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. द प्रोसेस
of preparing food by the plants is called photosynthesis. The equation represent this process: carbon dioxide, water, sunlight, glucose, that is carbohydrate, and oxygen. This equation can be written at CO2 plus H2O in the presence of sunlight, this thing and this thing, and glucose. Glucose is C6H12 and again O6 plus O2 oxygen. Okay, now this equation is not balanced. You will be studying more about how to balance the equation and all in the next class, but right now I am giving this equation so that you have some idea that how the formulas are there for different components, different compounds over here. Just see, this is carbon dioxide, water, 6 molecule of water, and this is glucose, and this is oxygen. Lots of see बहुत सारा oxygen release होता है. Now see here, next part is the green plants which prepare their own food glucose are called producer or autotrophs. Auto means self. See here, it is already written. Autotrophs means food and auto means जो automatic machine जैसे हम लोग कहते हैं अपने आप जो शुरू हो जाता है, अपने आप जो start हो सकता है. So plant prepare their own food using sunlight. Now consumers. Now see in the plant that word producer, वो अपना खाना खुद बना रहे थे, but here animals are consumer. जो plant खाना बना रहे हैं उसको हम लोग consume कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं. Animals cannot prepare their own food. They have to depend on plants for their food. They are called consumers or heterotrophs. Heterotrophs. Now see here, hetero दूसरे के ऊपर depend. वहाँ पर क्या था? Producer, auto. वो खुद बना रहा था, लेकिन here when it comes to animals, they are hetero. मतलब दूसरे के अपने food requirement के लिए they depend on others. All animals feed on green plants either directly or indirectly. सारे plants ये इस बात से समझ सकते हो आसानी से कि even though lion does not eat green plant, but it eats the animals which depends on green plant, right? जैसे अगर वो बकरी खा रहा है तो बकरी घास के ऊपर डिपेंड कर रही है और बकरी को खा करके वो अपने को सर्वाइव कर रहा है, whatever. So animals feed मतलब खाना feed on green plants either directly or indirectly. Animals like cattle, goats directly eat plants like grass and fodder. ये cattle क्या हुआ भाई? cattle में क्या होगा कि उसमें cows भी हो सकते हैं, like bulls हो सकते हैं, oxen हो सकते हैं, calves हो सकते हैं. calves means गाय के बच्चे हो सकते हैं. all these consist of these thing makes cattle. and goat directly eat plant. ये सारे क्या करते हैं? directly plant खाते हैं, like grass and fodder means चारा. they are called primary consumers or herbivores. primary मतलब सबसे पहले खाना ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट ये हर्बीवोर्स रहते हैं. हर्बीवोर्स मीन्स जो घास फूस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स. इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल, गोट एक्सेट्रा. सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स. जो मीट खाते हैं दैट इज कार्निवोर्स. देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. कुछ हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स. मतलब वो फल फूल भी खा लेंगे और मीट भी खा लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? ओमनिवर्स. सब चीज़ खा सकते हैं. लाइक एनिमल्स, बियर, पिग्स एक्सेट्रा आर ओमनिवर्स. वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवर्स सिंस वी ईट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स. तो हम लोग ओमनिवर्स, हम लोग सब चीज़ खाते हैं. नाउ दीज आर examples of different pictures of carnivores. Example of herbivore, carnivore and omnivore. Now microorganism. What is microorganism? That is decomposers. Microorganism are tiny organism that cannot be seen through your naked eyes. Some special kind of apparatus, tools is required in order to see this, observe this. In addition to produce, decompose मतलब उसको टुकड़े टुकड़े जो वो होते हैं जो कि
कोई भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, सड़ रहा चीज़ होता है, उसको गला देते हैं और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एक हम लोगों ने पढ़ा प्रोड्यूसर जो खाना खुद से बनाते हैं, कंज्यूमर जो उस दूसरे के ऊपर प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग खा रहे हैं. देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. जो सड़े गले चीज़ हो रहे होते हैं उनके ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं और वो होते हैं डीकम्पोजर्स, क्योंकि वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट. Now decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. Minerals क्या होता है भाई? Minerals are those elements in food that our body require, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है. कौन सा एलिमेंट्स? these are elements that require our body to function properly, कि हमारा बॉडी ठीक ठाक से काम करता रहे, उसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है. These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. This process is called recycling of minerals. You know that after a death of a living organism, it goes back to the soil by different process, and this is called recycling of minerals. क्योंकि बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स रहते हैं, तो जब वो डीकम्पोज होता है तो वो वापस सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में चला गया तो फिर से वो प्लांट उसको यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए. फंजाई एंड बैक्टीरिया इज़ द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन. फंजाई एंड बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करते हैं क्या चीज़ को? डीकम्पोजिशन में. यानी जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसको और सॉल्युबल फॉर्म, उसको और मिट्टी में मिलाने में हेल्प करते हैं. दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. मतलब एक स्पेशल अपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग अपनी नॉर्मल आइज से हम लोग नहीं दे सकते हैं. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब बहुत छोटे, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स एंड काइट कंज्यूम डेड बॉडीज of animals. This process helps in keeping the environment clean. They are called scavenger. अब यही है कि ये सारे जो जानवर हैं, जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, they help to keep our environment clean by eating dead bodies of animals. वो अपने आप मारते नहीं हैं, बस उन्हें जो मरा हुआ मिल जाता है उसको खा लेते हैं, और वहाँ पर उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है और इन लोग का लाइफ भी अपना मज़े में चलता है. सो डू यू नो इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, इसको याद रखना है. इफ़ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज, अगर नहीं वो मरते हैं तो देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर जो जिंदा है उन लोग के लिए जगह ही नहीं बचेगी अगर डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना हो, या फिर उसको लोग ये जो स्कैवेंजर्स है उसको खाएं नहीं. सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीज़. और जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज और हैं सॉइल एयर that can cause disease. Now this part you can do easily. You have to just put the right or living organism in the right column. Now there are certain materials that cannot be decomposed in water. Now let us perform the following activity. तो करना क्या है कि इसमें टेक अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ यूज प्लास्टिक बैग. यूज प्लास्टिक बैग मीन्स जो पहले से यूज़ कर लिया, खरीदना नहीं है. बड़ी मतलब उसको गाड़ देना है. दीज इन द सॉइल. आफ्टर 1 month डिग अप द सॉइल एंड चेक द 3 things. तीनों को, किसको? न्यूज़पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक को. क्या? व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द प्लास्टिक बैग शोज नो चेंज इन द एंड इट इज़ इन द सेम कंडीशन एज इट वॉज बरीड. जब उसको गाड़ा गया था उस जब निकालोगे तो वैसा ही रहेगा, लेकिन पेपर एंड क्लॉथ हैव चेंज्ड and are partially decomposed. Why has this difference in these material occurred? कैसे हुआ भाई ये? This is due to the difference in the action of decomposition on them, decomposers on them. जो decomposers हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वो प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सके, means they are non-biodegradable. Now we observe that paper and clothes are biodegradable material. Biodegradable means living organism, और जो degradable means जो डिकम्पोज हो सके. सो दीज मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस. सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब वैसे फॉर्म में वो आ जाए ताकि वो मिट्टी में घुल जाए. बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
Plastic is non-biodegradable. It cannot be broken down into simpler substances by any organism, any microorganism. Microorganism acts on biodegradable material to make it into simpler form to go back into the soil, whereas non-biodegradable substance cannot be decomposed by microorganism. तो उसको डिकम्पोज नहीं होता है तो वो वैसा का वैसा ही रह जाता है. इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक्स को एनवायरनमेंट में नहीं लाना चाहिए, यूज़ उसका कम करना चाहिए. प्लास्टिक्स एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली, मतलब बुरी तरह से, इन अ नेगेटिव वे. एडवर्सली मीन्स इन अ नेगेटिव वे. तो प्लास्टिक और जो डिकम्पोज नहीं होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं. देयर एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना इन द सीवरेज सिस्टम. सीवरेज मीन्स जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसमें फंस जाता है. यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हाट हैपन्स, द वाटर लॉगिंग रोड्स कैन बी सीन. तो वो क्यों होता है? क्योंकि लोग पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं हो रहा है, पॉलीथीन जा कर के ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है और क्या हो रहा है, उससे ब्लॉकेज हो रहा है ड्रेन्स का. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स ऐड टू एयर पोल्यूशन. और अब उसको अगर जलाया जाए तो एयर पोल्यूशन होता है. तो वी शुड देयरफॉर कन्विंस मीन्स अपने दोस्तों को विश्वास में लाना चाहिए कि आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स, कि हमारा प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ होना चाहिए, नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए. नाउ डू यू नो इन सम सिटीज़ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स उसके कल्याण के लिए, ताकि नुकसान कम हो. ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन are placed in localities. In the blue bins, non-biodegradable waste, plastic, aluminum foil, batteries etc. are disposed of, means उसमें कचरे में डाला जाता है. In green bins, biodegradable waste, vegetable waste, paper, cloth, cardboards, ये सारा डाला जाता है जो डिकम्पोज हो सके. मीन्स किसमें? ब्लू बिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाला जाता है और ग्रीन बिन में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ग्रीन stands for greenery, biodegradable. So it is important for us to segregate. Segregate means अलग अलग करना, इकट्ठा करना. Segregate means अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना. In biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environmental friendly way. Environmental friendly way मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, उस तरह से कचरे को हम लोग डिस्पोज करें, फेंकें, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें. द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट. पिट मीन्स गड्ढा, छोटा सा गड्ढा, डग मतलब खोद करके. इन द गार्डन विच इज़ देन कन्वर्टेड विथ सॉइल एंड ड्राई, कवर्ड विथ सॉइल एंड ड्राई लीव्स, ढक देना चाहिए. दिस वेस्ट इन द पिट इज़ एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लाइक ग्रीन बीन्स में हम लोग ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जिसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट कर सके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट कर देता है कंपोस्ट में, यानी खाद में. दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड बाय फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स एंड इन फील्ड्स एंड गार्डन. राइट, ये कंपोस्ट बन गया जो हमारे यूज़ में आ गया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ नीडेड बाय द living organism like plants to grow in a healthy way. In order to hasten means fast, किसी प्रोसेस को फास्ट करने को कहते हैं hasten. The process of compost making, a variety of earthworm called red worm can be mixed with the kitchen waste. They convert it into compost. Red worms और अलग और भी worms है उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो compost तेज़ी से बना सके. Into compost very fast. The process of forming compost with the help of various worms. Worms means the small insect और that is कीड़ा भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज में एक और बोला जाता है. खैर, so वर्मी composting is an excellent nutrients rich organic fertilizers. Organic fertilizer means जो कि living organism से fertilizers बना है. एंड सॉइल कंडीशनर मतलब सॉइल को कंडीशन में लाता है, जो सॉइल ख़राब हो चुका होता है उसको वापस कंडीशन में ले आता है ताकि वो उसका फर्टिलिटी, उसकी जो उपजाऊता उसकी बनी रहे. ठीक है. नाउ लेट्स लेट द लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे एज वेस्ट इन द डस्टबिन. डोंट you think some of them are recycled, reused or composted. Now what is the meaning of recycled, reused or composted?
रिसाइकिल का मतलब हुआ कि वो ऐसा चीज़ जिसको फेंक रहे हों, जो यूज़ करंट जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कलेक्ट करके प्रोसेस करके दोबारा से उसको एक नए प्रोडक्ट में फॉर्म किया जा सके, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सो रिसाइकिल इज़ जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक्स है, एल्युमिनियम है, वाटर बॉटल्स है, मेटल का जो कचरा निकलता वो है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो सारे को अलग अलग जगह पर डिस्पोज करके क्या होता है कि इट इज़ सेंट बैक टू द फैक्ट्रीज और द प्लेस वेयर इट कैन बी रिसाइकिल्ड, मतलब नया चीज़ उससे बनाया जा सकता है और उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड लाइक हियर इट इज़ अनदर वर्ड रीयूज़। तो रीयूज़ का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई बॉटल है जिसमें कुछ आइसक्रीम आया और उसमें आपने कुछ और सामान रखने के लिए यूज़ किया, तो दैट इज़ रीयूज़। और कंपोस्टेड है ना, बड़ा अच्छा टर्म्स है। इसमें क्या हो रहा है कि तीनों चीज़ हो रहा है, तीन जो आर है वो तीनों आर यूज़ हो रहे हैं। लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंपोस्ट में जब कंपोस्टेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो तीन आर इसमें यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, मतलब उसको दोबारा से उसको रिसाइकिल किया जा रहा है, रीयूज़ किया जा रहा है, और कोई चीज़ को कम यूज़ करना भी उस चीज़ का बचाना होता है। अगर हम लोग कोई सामान कम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट। लाइक कंपोस्ट, अगर कंपोस्टिंग हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि जो भी वो क्या चीज़ में टर्न हो रहा है, वो गार्बेज में टर्न हो रहा है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो लिविंग थिंग्स है, उसको क्या हो रहा है, उसका रीयूज़ हो रहा है। वो कचरे में जाने के बजाय क्या हो रहा है, उसका रीयूज़ हो रहा है, और सॉइल में जब मिक्स हो रहा है तो वही चीज़ रिसाइकिल हो जा रहा है। अंडरस्टूड? सो कंपोस्टेड इज़ टू बी अंडरस्टूड। नाउ सी हियर, try to categorize the items into three columns under their appropriate headings. You may find it interesting to note that the names of some of the items can be put in more than one columns. क्या क्या चीज़ है भाई, जब तुम लोग ये भरोगे तो तुम लोग को ये पता चलेगा कि बहुत सारे आइटम है जिसको दोबारा से इसमें डाला भी जा सकता है। सपोज़ कि यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक केन्स डाल देते हैं, सपोज़ प्लास्टिक केन्स डालते हैं, तो उसको रीयूज़ भी किया जा सकता है, बट लेकिन उसको कंपोस्ट में नहीं चेंज किया जा सकता है, राइट। तो ये यू जस्ट मेक द लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ abiotic components, and we have said in the beginning also, abiotic means that is pertaining to non-living things, and non-living things include physical condition and non-living material that affects the growth, maintenance and reproduction of living components and can interact with each other. सब आपस में एक दूसरे के ऊपर फ़र्क लाते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग और abiotic component. These non-living components form the physical or abiotic environment in nature. Let us study more about it. Water is essential. You all know that water is very essential. Every living organism requires water in order to survive and growth. It is needed and used for drinking, bathing, cooking, etc. Animals and plants cannot survive, मतलब जिंदा नहीं रह सकते without water. It is used for irrigation. Irrigation means to water the crops. पानी सिंचाई के काम में आता है। Humans and other animals need water for different activities for their life. जितना भी काम हम लोग को सवेरे से रात तक में हमें बहुत सारा काम में पानी की ज़रूरत होती है. Try to think and list the various activities for which we use water. It is already given there: drinking, bathing, cooking, cleaning, all this. Now, rainwater harvesting. What is harvesting? Harvesting is, when harvest festival, you must have heard about, like Baisakhi is harvest festival. क्या होता है उसमें क्रॉप को कटाई होती है और फिर उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब क्रॉप को रखा जाता है बाद में यूज़ करने के लिए. उसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना और जब ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल में लाना.
उसको वेस्ट नहीं होने देना. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स. बारिश हो रही हो तो उस वक्त उस पानी को कैप्चर कर लेना है, जमा करके रख लेना है. रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड एंड देन यूज लेटर. बाद में लेटर मीन्स बाद में. दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज़. ये जो है नेचुरली होता है जहाँ पर कॉन्क्रीट फ्लोर नहीं है. रूरल एरिया मतलब गांव वाले एरिया जहाँ पर खेत वगैरह काफ़ी है, खुले मैदान ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है बारिश का जब पानी गिरता है तो क्या होता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है. हाउ एवर इन कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मतलब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में घर वगैरह बने रहते हैं, वहाँ पर जहाँ बहुत क्लोज घर बने रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पानी ड्रेन में चला जाता है, मतलब नाले में बह जाता है, ना कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. तो क्या यहाँ पर था, वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दिस इज रूफ टॉप rain water harvesting is one of such method. Here rainwater can be collected at the rooftops, terrace of the house. Through pipeline this water can be transferred to tanks, pits. Just see this example, see this picture and you will be able to understand what is a rainwater harvesting on the rooftop. Through pipe this water can be transferred to tanks, pits or small wells. नीचे मतलब ग्राउंड में पानी यहाँ पर छत पर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है. क्या बना हुआ है, टैंक्स या पिट्स और छोटा सा कुआं बना हुआ हो, उसमें जा कर के इकट्ठा हो रहा है. सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ ओनली आफ्टर फिल्टरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. ये पानी जो होगा बहुत क्लियर नहीं होगा क्योंकि छत से जा रहा है, पाइप में जा रहा है, ज़मीन में जा रहा है, तो उसको पहले फ़िल्टर और प्यूरिफिकेशन के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए ताकि बीमारी वगैरह ना हो. Now rainwater harvesting can supplement the requirement of water in cities. Supplement means पूरा करना. And raise the subsoil water level. Subsoil water level means मतलब ह्यूमस के जो लेयर्स ऑफ सॉइल जब तुम लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना उसके ठीक नीचे वाले लेयर को सबसॉइल लेवल कहते हैं. जो तुम्हें दिख रहा है उसके नीचे वाले लेवल को सबसॉइल कहा जाता है. दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज. अर्बन मीन्स शहरी एरिया में ग्रीनरी लाने में इसको हेल्प करता है. इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड तो क्या होगा, इट विल फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इज़ दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़. अब पानी बह जाएगा, दूसरे ऐसे जगह पर चला जाएगा तो जहाँ पर बारिश हुई, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा यूज़ के लिए. द रेन वाटर दैट फॉल्स इन द रोड और कॉन्क्रीट एरियाज गोज इन टू द ड्रेन, नाले में चला जाता है. द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सीप्स इन टू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. ये चीज़ क्या होता है, अनट्रीटेड ग्राउंड जहाँ पर कोई कंक्रीट या कुछ फ्लोरिंग वगैरह नहीं किया है वहाँ पर क्या होता है मिट्टी रहती है, तो मिट्टी से क्या होता है पानी है ना सीप कर जाता है, मतलब रीस करके ग्राउंड को में चला जाता है और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है. जो नीचे से पानी हम लोग ले रहे हैं जैसे पाइप्स ट्यूबवेल वगैरह से या कुएँ को वो रिचार्ज कर देता है. इनोवेटिव मीन्स जो नए तरीका जो होता है उसको कहते हैं इनोवेटिव. वाटर कलेक्शन मेथड यूज टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बहुत नए तरीके को अडॉप्ट करना होगा ताकि हम जो रेन वाटर है उसको डिफरेंट एरियाज़ में कलेक्ट कर सकें, यूज़ कर सकें जब बारिश होती है. Now activity 4, think of some innovative way by which use of water and wastage can be minimized at school and at home. Interact with your friends, neighbors and family members. Make a poster and harvest water to harness life. This is an interesting activity. Harness water, harvest water to harness life. Harness means हार्नेस होता है जब बॉडी से ऐसा स्ट्रैप्स वगैरह बांध के रखा जाता है जो कि माउंटेनिंग या फिर घोड़े पे बैठे हो तो वो गिरने से तुम्हें बचाता है. तो इट हेल्प्स टू कीप योर लाइफ सेफ. तो हियर वी कैन से दैट वाटर इज़ इन दिस स्लोगन it is said that water is very important for a living being to live, either for the human beings or the plants or the animals. You know, we all depend upon water for our daily needs and also for drinking. सब चीज़ के लिए ज़रूरत है. तो water provide us with that fiber that keeps our life safe, right? So now come to next part, that is
Air. We know that all living organisms need air for the survival. Air is a mixture of several gases, like that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide are the important gases present in the air. Plants, animals use oxygen for respiration. Respiration is the process of exhaling and inhaling of gases. Plants consume carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen back into the atmosphere. और इसके कारण बैलेंस बना रहता है एनवायरनमेंट में. Besides oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses and dust are also present in the air. Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary to sustain life. क्या होता है, ये डस्ट, इसीलिए बोला जाता है कि एयर पोल्यूशन को कम करना है ताकि हम लोग का लाइफ हेल्दी रह सके. नाउ लाइट, नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस by the sun during the day and by the moon during the night. The moon, as you know, only reflects the sun's light. moon का अपना लाइट नहीं होता, तुम लोग को पता ही है. ये क्या होता है, सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है. Hence sun is the ultimate source of natural light. इसी सन के से ही सारा लाइट मिलता है. This natural light is used by the plants to grow, to prepare their food. Life on earth is dependent on sunlight. अगर सनलाइट नहीं आएगा ना तो अर्थ पर लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा, फूड नहीं बनाएगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो कोई एनिमल भी सर्वाइव नहीं करेगा. नाउ प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. लाइट पेनिट्रेट्स मीन्स पूरा अंदर तक जाना, इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज. पानी के अंदर भी लाइट जाता है. एक्वाटिक एलिमेंट, एक्वाटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, पानी में उगने वाले प्लांट्स, use sunlight for photosynthesis just like other plants. However, the amount of light reaches these plants decreases with an increase in the depth of water. That is why very few plants are able to survive in deep water. क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी की, उस सनलाइट कम जाने लगता है, कम हो जाता है. मतलब एकदम नदी के पूरी गहराई में जाने पर लगेगा अंधेरा अंधेरा, डीप सी में जाने पर लगेगा अंधेरा, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा. वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर फोटो सिंथेसिस प्लांट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर प्लांट कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज. हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी? दैट इज़ आइपोमिया. इट फ्लावर्स ब्लूम out at sunrise, that is morning, and close down after sunset. Similarly, in some plants, the leaves open during the day and close during the night. बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट, जैसे सूर्यमुखी का प्लांट जो रहता है वो सन की तरफ घूमता है. इसका मतलब सनलाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है प्लांट्स को. द सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन इन द मॉर्निंग, इट फेसेस द ईस्ट इन द इवनिंग, इट टर्न्स टुवर्ड द वेस्ट, राइट, दैट वी नो. नाउ एनिमल्स also variation in their behavior with the amount of light available to them. Most of the animals are active during the day. जैसे हम लोग भी दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. Some animals like rat, cockroaches and owls are active during the night. वो लोग नाइट में एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन लोगों का रिक्वायरमेंट एडेप्टेशन डिफरेंट है. Now temperature at a place is indicative the degree of hotness or coldness. कितनी गर्मी है या कितना गर्म है या कितना ठंड है, उसको डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है, बताता है. क्या चीज़? टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस. इट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह पर अलग अलग गर्मी होती है. टेम्परेचर अफेक्ट्स एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. अब गर्मी और ठंड के हिसाब से कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से वहाँ का वेजिटेशन या एनिमल्स जो है रहते हैं. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर. कौन ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका अपना अपना टॉलरेंस होता है कि वो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड कोल्ड क्लाइमेट. बहुत सारे जो प्लांट हैं, ज़्यादातर प्लांट क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस, थोड़ा गर्म वाले जगह में रहते हैं. बट सम नीड कोल्ड क्लाइमेट, कुछ लोगों को ठंड वाले जगह की ज़रूरत होती है. काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर दैन द बुफेलोज, राइट.
मतलब गर्मी, काउस जो है गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं भैंसों के कंपैरिजन में. वी ऑफन सी buffaloes cooling themselves in ponds during the summer. This is because buffaloes are black in color. You know that black color absorb more of the heat and do not have efficient sweat gland. उन लोगों के पास जो sweat glands हैं, वो जो पसीना निकलने वाला जो glands है, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा अच्छा से वर्क नहीं करता है. तो उन लोगों को बहुत गर्मी लगती है. तो बहुत गर्मी लगती है तो वो लोग जा कर के पानी में बैठ करके रहते हैं, पोंड वगैरह में जा कर के बैठ जाते हैं. हैंस दे फील द हीट मोर दैन the need to cool themselves by remaining in water, और पानी में रह के खुद को ठंडा करते हैं. On the other hand, camels can tolerate even the extreme heat of the deserts. They have no sweat glands. उन लोगों का sweat glands नहीं होता है और आराम से वो गर्मी में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में रह सकते हैं. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द उन लोगों का स्वेट. अब ये देखो यहाँ पर एक ये है कि उन लोगों का स्वेट ग्लैंड यानी पसीना निकलने का ग्लैंड्स नहीं होता. अगर पसीना निकलने का ग्लैंड्स होगा तो क्या होगा, क्योंकि रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो वहाँ उन लोगों का पसीना निकलेगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा और पानी की वहाँ कमी है. इसी कारण इन लोग का जो एडेप्टेशन है इस तरह से है कि उन लोग का वाटर लॉस ना हो, पानी कहीं से उन लोग का वेस्ट ना जाए बॉडी से. फॉर देयर बॉडी दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, और इसके कारण है कि वो काफ़ी टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं. पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन. टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन वार्म रीजन. See the pictures and let's move to the next part, that is soil is another important abiotic of our environment. Most of the plants cannot grow without soil. You know that all the plants grow in the soil. Soil provides water and minerals to the plant which are important for their growth. It also provides a home to organisms that live in soil. और soil में बहुत सारे thousand types of bacteria हैं that we cannot see but it is there. और वो सारे के सारे वो सारे हेल्प करते हैं, उसमें से सारे नहीं तो काफ़ी सारे हेल्प करते हैं ताकि सॉइल में लिविंग सर्वाइव कर सके, प्लांट्स ग्रो कर सके. नाउ इंट्रोडक्शन इन द एनवायरनमेंट. इंट्रैक्शन मीन्स अब ये सारे एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर कैसे अफेक्ट डालते हैं. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इन देयर फूड रिलेशनशिप. देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स. Many of such animals are eaten by other animals which in turn are eaten by some other animals. There are thus food chain in nature. For example, food chain होता है जब कौन किसको खा रहा है, that is food chain. Like grass is producer, primary consumer depends on grass and secondary consumer depends on primary consumer. That is producer, primary consumer and secondary consumer. It is an example of a terrestrial food chain. Terrestrials means मतलब earth से related. When such a chain exists between aquatic plants and animals, it makes aquatic food chain. मतलब terrestrials means जब earth पर हो रहा है, aquatic food chain when it is happening in the water. Now this is activity 5. For each of 3 cases A, B and C, use the words given in the box to make food chain. Also identify the nature, that is terrestrial or aquatic. Terrestrial means जो अर्थ पर, लैंड पर, and aquatic means वाटर में. Of each of these 3 food chains, like all, grasshopper, rat, snake. Okay, just do it. This one is easy. You can do it of your own. Now the mineral cycle. Cycle is when it keeps on cycling, right? Now there is a relationship between the abiotic and abiotic components are environment. The biotic substance supply nutrients to the producer. सारे living organism को nutrients की ज़रूरत होती है. Nutrients क्या होता है? The elements that the minerals and vitamins that the different components of food that is required for our body are nutrients. तो एबायोटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो जैसे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो जो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को. द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर. जो हम लोग कंज्यूमर हैं एनिमल्स, उनके लिए वो फूड बनाते हैं. बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डीकम्पोजर दैट वी हैव स्टडीड. द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल. क्योंकि सारे में न्यूट्रिएंट्स है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में न्यूट्रिएंट्स है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है आफ्टर डेथ, आफ्टर इट्स death it goes back to the
सॉइल, वापस सॉइल में मिल जाते हैं और पानी में मिल जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. और यही साइकिल चलता रहता है. द होल साइकिल इज दस रिपीटेड कंटिन्यूसली. ये लगातार चल रहा है. द साइकिल ऑफ द मटेरियल्स थ्रू बायोटिक and abiotic component is called mineral cycle. See this is important flow chart. Try to understand. Now during the process of respiration both plants and animals take in oxygen from the atmosphere. अब respiration के time में imagine respiration क्या है? Inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide. Respiration is inhaling of ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सी हियर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों का दोनों रेस्पिरेशन में क्या चीज़ ले रहे हैं. देख लो यहाँ पर प्लांट भी है. इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो प्लांट और एनिमल्स दोनों के दोनों ऑक्सीजन ही ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं. ओके. द कार्बन डाइऑक्साइड also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes place. ये सबसे भी कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारा निकलता है. This increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. अब सारे लोग जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं और ये बर्निंग ऑफ वुड है, कोल है, ये सारा हो रहा है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है. अब इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है. अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो बैलेंस होना चाहिए. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. द प्लांट्स यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ सी हियर, यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हियर इट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड हियर इट इज़ रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहा है. Thus, a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. और जब वो खाना बना रहा होता है प्लांट तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा होता है और ऑक्सीजन दे रहा होता है और इसी के कारण क्या होता है, मेंटेन रहता है बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में. जस्ट सी दिस इज़ द हाउ द नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बर्निंग, कम्बशन, रेस्पिरेशन, सारे से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या यूज़ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है. उसके बाद ये क्या ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है. ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन, जब प्लांट रेस्पायर कर रहा है या एनिमल रेस्पायर कर रहा है तो इट टेक्स इन ऑक्सीजन और फिर दे क्या रहा है, जब एक्सेल करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब जब सांस छोड़ रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है. सो दिस वन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड and you are getting all the points. We thus realize that in our environment its living and non-living components keep on interacting with one another. This makes our environment a dynamic system. एक बहुत ही dynamic system बनाता है. Dynamic means when something is in movement. मतलब ये जो environment है वो हमेशा move कर रहा है, कुछ ना कुछ एक दूसरे में change हो रहा है, interact कर रहा है. So this is dynamic system. Now dear students, these keywords are very important and very easy as well. If you are able to learn all these keywords, you will be able to score good in examinations. So all these keywords has to be learned, and apart from these keywords you must know has to be learned by heart. And if you are able to do 90% of your problem will be solved, you will be able to score more than 90% marks in the examination. Now fill in the blanks. Now let's do the question, this fill in the blanks first. This is quite easy since you have understood the chapter, so you will be able to complete this. So plastics is non-biodegradable. Non-biodegradable. You may write it off. You must say no to plastic bags, and use jute bags or carry bags. Jute bags or cloth bags. You may write others also, that is not plastic. Here it has to be seen that plastics are not used here. The flowers of the morning glory bloom with sunrise and close after the sunset. Now polar bear and penguins
are among the animals found only in cold region. Dash and dash help in balancing the carbon dioxide, and that is respiration and photosynthesis, burning or photosynthesis. Respiration, burning, here respiration, check, see the spelling, respiration, burning, and here photosynthesis. Now herbivores can prepare their own food. This part is easy. Herbivores can prepare their own food. No, false. Fungi and bacterial organism that can be easily seen by the human eye by itself. No, that is false. The sunflower face the east in the morning. Yes, true. The camels do not have sweat glands. Yes, true. Soil is an important biotic component of our environment. No, it is abiotic. This is false. Now this you have to correct. Biotic environment includes what is producer, all the living organism. Only this one. Now the group of organisms that use light for making food are only autotrophs. Now decomposers include what? Fungi and bacteria. Bacteria as well as fungi. Which of the following is not biodegradable? Is not biodegradable. That is aluminum foil. Vermicomposting is done by worms. An animal that is not affected much by the heat of the desert is camel. Now let's do the question answers. And these are the question answer. Why should we segregate different types of waste? We should segregate different types of waste to dispose them in eco-friendly way in our environment. It helps in proper waste management, and it becomes easier for municipal workers to separate biodegradable and non-biodegradable waste. Read the meaning of the term vermicomposting. Full stop. Vermicomposting is the process of composting with the help of various suitable worms like red worms and other earthworms. Which component of air gets used up during the process of photosynthesis? Carbon dioxide. Suggest any 5 activities that can help to save the environment. You can find out क्या भी कर सकते हैं हम लोग environment को save करने के लिए. Segregation and disposal of waste in eco-friendly way. Use of cleaner fuel. Minimize the use of plastics. Afforestation. Afforestation means खूब सारे पेड़ पौधों को लगाना. Less use of vehicles को कम यूज़ करें ताकि pollution ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम निकले. How does nature help nature maintain a balance between the amount of oxygen and the carbon dioxide in the atmosphere? By what? Amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere by process of breathing, burning and photosynthesis. This is just we have done, and if you have not understood, you can go back and listen to that part. Now answer the following question. Now dear children, always try to make a table while you are distinguishing or differentiating two things when you are doing comparative studies. Now autotrophs and heterotrophs, make such kind of table while you are writing such kind of question answers. Autotrophs produce their own food and heterotrophs do not produce their own food. This one is easy. Yes, animals and non-green plants, okay, are heterotrophs. Now decomposers and scavengers. Decomposers are there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. They are called decomposers, and examples are fungi and bacteria. The organism that feeds on dead animals that is not killed itself is called, मतलब उसने खुद से नहीं मारा, वो बस मरे हुए चीज़ को खा रहा है, तो these are scavenger like crow, vulture, hyena, jackal. All these are scavenger, dead को खाते हैं ये. State the difference between biodegradable and non-biodegradable materials. Give one example of each. Now again, since the question is different, so table has been made. These are materials which can be broken down into simpler substances by microorganism. These are materials which cannot be broken down into simpler substances by microorganism. This is very easy. Just यहाँ पर
कैन बी और यहाँ पर कैन नॉट बी, बस इतना लिख देने पर ये यू विल गेट फुल मार्क्स. हाउ डज decomposition of dead animals turn out to be useful? Both producer and consumer after their death are broken down into simpler substances by decomposers. The nutrients return to the soil, air and water. The nutrients are again used up by the producer. Therefore, decomposition of dead is useful and important. Useful भी और बहुत ज़रूरी भी है. Why rainwater harvesting a ray of hope for overcoming the present scarcity of water in the cities? Yes, rainwater harvesting is a way through which we can save a lot of rainwater which are wasted during the rains. It fulfills the need of water for household uses. The rainwater can be stored above the ground or under the ground so that it can be used when required. जब ज़रूरत हो तब उसको इस्तेमाल के लिए हम लोग ला सकते हैं. Thus, rainwater harvesting is a must in cities to save life. गांव में ज़रूरत नहीं, क्योंकि गांव में तो बहुत सारा ओपन लैंड होता है, कंक्रीट फ्लोर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहर में बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑफ होप फॉर overcoming the present scarcity of water in the cities. Now, why do buffaloes cool themselves in water during the summer? Because they do not have efficient sweat gland and they are black in color. So they feel hot. To get themselves cooler, ठंड कर रखने के लिए वो लोग चले जाते हैं पानी में. Draw a diagram that shows the relationship between the biotic and abiotic components of the environment. ये पेज नंबर 10 से I have taken the picture and pasted it here. You can see page number 10. Now this is value based question. Why this is required? So that you are able to imbibe few good values, so you become a good human being. Let's see what is there. Suchi's mother did not approve of her idea of taking help from their neighbors for making models for a school exhibition. She told her that she should do her work herself with confidence and honesty. She then helped and guided Suchi to design very useful, interesting and attractive items from old newspaper, best from the waste. Suchi's model were very much appreciated as they were in tune with the concept of reuse and recycle. State the values conveyed by Suchi's mother. तो क्या उसने वैल्यू दिया? Confidence and honesty. Give one example of recycling of material. Recycling of material क्या हो सकता है? प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दूसरा आइटम्स बनाया जाता है. So this can be done. Have a group discussion with your friend which each one suggests one or more idea in tune with the idea of recycling and reuse. Let's do the discussion and imagine a scenario. This has to be done. Skit करना होगा इसमें. Please do it yourself and let's consider this chapter to be completed. Thank you and study sincerely. Bye bye. Thank you.